Hello everyone, welcome to Abida Inamdar Senior College Department of Computer Science. I am Gulbahar Ansari. This syllabus is based on Introduction to Cybersecurity. Now in this we will study chapter number 4, Cryptography or Encryption. These are the following points which we will discuss in this chapter. Topics is Topics are Introduction to Cryptography, Digital Signature, Public Key Infrastructure, Application of Cryptography, Tools and Techniques of Cryptography. First point is cryptography. Now, when we are talking about network environment, then it is very important to achieve security. Why security is needed? Because actually, if we are sending information to receiver, anybody can see my message, read and alter it before it will reach to the receiver. Okay, a hacker will hack my data and alter that data. Okay, so this is actually wrong. So this is very dangerous to us. We will lose very crucial data. So that's the reason cryptography is important. From this we can achieve security actually. These are the points which are important in cryptography: confidentiality, integrity, non-repudiation, authentication. Now first we will see the definition of cryptography. Then after that we will discuss that point. Cryptography points. Okay. So now what is exactly the definition of cryptography? It is a process of converting plain text to ciphertext. It's called what? Cryptography. Now this diagram is showing how cryptography achieved. First process is plain text. Now for example, I am a sender and I want to send sensitive information to my colleague. Then what will happen here? First, this message which is in the form of plain text. Actually plain text is what? We can read and understand that message. So this is the plain text actually. So I want this message, nobody can access, only authorized person can access. So now in second step, here I will apply the encryption process. Encryption is the process of translating plain text data to the meaningless data. So nobody can understand what exactly the message is. So here we will use public key for encrypt the data. Now here key is actually, it is a sequence of characters, numbers, etc., which is randomly generated actually. So this is called what? Key. After that this message converted into ciphertext, which means no one can understand it. So after that this message received by the receiver, then receiver will decrypt that data. Actually here decryption, it means what? We are converting ciphertext to plain text, means in the original message. Actually we are converting this ciphertext in the original message by applying what? Applying same public key which we have used at the time of encryption. So by using same key, message will decrypt so securely our data received by the receiver. So how these points are achieved in cryptography? First point is confidentiality. It means what? Whenever I am sending my data, okay, message, any kind of message, that is what? Confidential to us. So nobody can understood I want. So in confidentiality means, for example, if we are sending the message, so only authorized person can access, other party, let's say hacker, will not access this message. No one can understood this message except whom to I send message. So our data is what? Confidential. So this is what? Confidentiality. No one can read and understood our data. Okay. Second point is integrity. So now actually the integrity is what? How the integrity is achieved here? If
I am sending crucial message, sensitive message to receiver. So third party will not alter my message because I applied the public key and converted it into ciphertext. So here it is not possible for the others, they will change my data. Okay, so they can't alter my information. This is what integrity actually. Third point is non-repudiation. So non-repudiation means what? For example, after receiver received message, okay, and if they got wrong message and said to the sender about this wrong message, so after that sender will not deny I didn't send this type of message. Okay, so this is what non-repudiation. So fourth point is authentication. Now actually authentication means what? If I am sending message to receiver, then I know that person identity whom I am sending actually. Okay, and receiver also know sender's identity. So दोनों भी एक दूसरे की आइडेंटिटी मालूम होने चाहिए. Okay, so this is called what? Authentication actually. Now all these things we are doing just for the security purpose. So if I am sending message or I am doing transaction, so securely my data will be reached to the right or authenticate person. Hacker will not use or hack my data. Okay, so now here we are doing encryption. So in encryption, basically in cryptography there are two types of cryptography. First is symmetric cryptography and second one is asymmetric cryptography. Basically in symmetric cryptography we are using what? Only one public key for encryption and same key for decryption the information. Okay, so this diagram is showing what? How symmetric cryptography is how symmetric cryptography works actually. So now here my message is in the original form and I want to send it to receiver. So by using public key I will encrypt original message. Here key is showing randomly generated character which I will use for encryption. After that it will convert it into ciphertext and this message received by the receiver. Then receiver wants to decrypt this message, so they need same public key actually for decryption. So at the time of encryption, if sender sending an encrypted message to the receiver, so they also have to send public key in the encrypted message. Then receiver decrypt that message by using what? Same public key. Here transferring data is little bit risky actually, because we are also sending what? Here we are also sending same public key with a message actually. So this is very little bit risky if we are using symmetric cryptography. Okay, so now second is what? Asymmetric cryptography. In asymmetric cryptography actually we are doing what? Here we are using two different pair of keys for encryption and decryption the message. Okay, so this diagram is showing asymmetric cryptography. So now for example, if let's say Bob wants to send message to allies, so how will Bob send message to the allies? By using what? First Bob will encrypt that message and then after that Bob then send the message to the allies. Okay, so how this process is going on? First Bob is having their own public key and private key, and allies is also having what? Their own public key and private key. Bob के पास अपनी public key और private key है and allies के पास भी अपनी public key and private key है for encryption and decryption. Okay, so encryption और decryption के लिए Bob के पास and allies के पास अपनी अपनी public and private key है. Basically public key जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्चुअली जितने नोड्स कनेक्टेड होंगे वो हर एक सिस्टम पे बॉब एंड अलाइज की पब्लिक की अवेलेबल रहने वाली है, बट प्राइवेट की बॉब एंड अलाइज की अपने अपने पास ही होंगी. ठीक है, वो उनके ही मशीन पे सिक्योरली वो क्या होगा
इंस्टॉल होगा बेसिकली। सो बॉब की प्राइवेट की और अलाइस की प्राइवेट की, अलाइस अपनी प्राइवेट की एक्सेस कर सकता, कोई और एक्सेस नहीं कर सकता, एंड बॉब भी अपनी प्राइवेट की एक्सेस कर सकता। बॉब की प्राइवेट की अलाइस एक्सेस नहीं कर सकती और ना ही कोई और पार्टी एक्सेस कर सकता। सो नाउ हियर इन असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी इस तरह से डेटा हम लोग सेंड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इनक्रिप्टेड, ओके, साइफर टेक्स्ट में किस तरह से कन्वर्ट करके। सो फॉर एग्जांपल इफ बॉब, अगर बॉब अपनी पब्लिक की यूज़ करके मैसेज इनक्रिप्ट करके सेंड कर रहा है, इनक्रिप्शन इट मीन्स वर्ड की जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं कि इस रैंडमली जनरेटेड सीक्वेंस जो भी अल्फ़ाबेट्स नंबर्स वगैरह है इन बिटवीन दैट कोई भी नंबर हम लोगों ने उठा लिया, एंड जो मैसेज है इन प्लेस ऑफ दैट हम लोगों ने उस लेटर के इन प्लेस ऑफ दैट लेटर हम लोगों ने क्या किया, ये जो भी कैरेक्टर है वो कैरेक्टर हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे, ठीक है। तो इट मीन्स व्हाट, एच जो हेलो है, इट मीन्स एच के प्लेस पे हम लोगों ने क्या पुट किया, फॉर एग्जांपल आई, ओके। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते, मैसेज को सेंड कर सकते इन प्लेस ऑफ दैट दूसरा हम लोग कोई भी रैंडमली सीक्वेंस में से कोई भी क्या करेंगे, लेटर लेके हम लोग उसकी प्लेस पे जनरेट करेंगे और मीनिंगलेस डेटा हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। वो इंक्रिप्शन का प्रोसेस रहता। सो वो जो भी मीनिंगलेस डेटा बनता वो हमारा एक्चुअली में साइफर टेक्स्ट रहता बेसिकली। तो 6EB69570 हियर इज व्हाट, this is what ciphertext converted, this hello allies will converted, gets converted into what, in the form of what, this meaningless data 6EB695। ये क्या हमारा एक एक्चुअली में जो ओरिजिनल मैसेज था कन्वर्टेड होकर साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया बेसिकली। अब इस मैसेज को कन्वर्ट किस तरह से हम लोगों ने की, अलाइस की पब्लिक की यूज़ करके हम लोगों ने क्या किया हुआ है, इसको मैसेज को इनक्रिप्ट किया। अब यहाँ पे एक सिनेरियो उससे पहले अलाइस की पब्लिक की अभी हम अप्लाई नहीं करते। फॉर एग्जांपल बॉब अपनी क्या कर रहा, पब्लिक की यूज़ करके इनक्रिप्ट कर रहा डेटा एंड देन मैसेज को ट्रांसफ़र कर रहा, सेंड कर रहा अलाइस। सो अलाइस अगर डिक्रिप्ट करना चाहे तो वो डिक्रिप्ट कैसा करेंगे, क्योंकि अलाइस को डिक्रिप्ट करने के लिए ये बॉब की ही प्राइवेट की से वो क्या हो सकता, अगर बॉब अपनी पब्लिक की से इनक्रिप्ट कर रहा डेटा तो बॉब की ही प्राइवेट की से वो डेटा इनक्रिप्ट हो सकता, डिक्रिप्ट हो सकता, सॉरी, ठीक है। तो अलाइस के पास तो बॉब की प्राइवेट की नहीं है, बॉब की प्राइवेट की वो एक्सेस नहीं कर सकती, सिर्फ बॉब ही एक्सेस कर सकता। सो वो डेटा कैसे डिक्रिप्ट करके ओरिजिनल मैसेज रीड कर सकती है अलाइस, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ओके। सो ये केस तो नहीं होगा हमारा। सो बॉब क्या करेगा, अगर बॉब अपनी प्राइवेट की से अगर इनक्रिप्ट करके सेंड कर रहा तो पब्लिक की तो हर एक सिस्टम पे अवेलेबल है, तो चांसेस में भी चांसेस है कि कोई भी हैकर क्या कर सकता है, वो डेटा हैक करके डिक्रिप्ट कर सकता है डेटा, में भी लिटिल बिट चांसेस है अवेलेबल, ठीक है। अलाइस के पास अल्टर करके उसने मैसेज सेंड कर दिया अलाइस को, ये भी पॉसिबिलिटी है फॉर एग्जांपल, ओके। सो नाउ अब बॉब क्या करेंगे, उसको सिक्योरली डेटा अलाइस को बहुत ही सेंसिटिव, एक्चुअली सेंसिटिव डेटा है, सो वो डेटा बॉब को क्या करना है, अलाइस को सेंड करना है। इनक्रिप्ट करने के लिए प्रोसेस क्या अप्लाई करेंगे वो, अलाइस अपनी पब्लिक, अलाइस की पब्लिक की यूज़ करके, क्योंकि बॉब के पास तो अलाइस की पब्लिक की होने वाली है और अलाइस के पास भी बॉब की पब्लिक की होने वाली है, वो प्राइवेट की तो नहीं होंगी बट पब्लिक की उसके पास होने वाली है अवेलेबल। तो बॉब अलाइस की पब्लिक की यूज़ करके बेसिकली उस मैसेज को हेलो अलाइस को कन्वर्ट करेगा इनटू साइफर टेक्स्ट, एंड वो साइफर टेक्स्ट हमारा क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा, सेंड होगा अलाइस को, एंड अलाइस क्या कर सकती है, उस मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकती है बाय यूजिंग व्हाट, अलाइस प्राइवेट की, अपनी प्राइवेट की यूज़ करके वो डिक्रिप्ट कर सकती है। बट अलाइस ही अपनी प्राइवेट की यूज़ करके डिक्रिप्ट कर सकती है, अब प्राइवेट की से ही वो क्या होगा, डिक्रिप्ट होगा, तो इससे ये चांसेस नहीं है कि कोई भी हैकर जो है वो हैक करके डिक्रिप्ट कर सके, क्योंकि उसके पास अलाइस की प्राइवेट की होने वाली नहीं है, तो वो डेटा डिक्रिप्ट नहीं होगा, ओके। सो सिर्फ अलाइस को ही एक्सेस है कि वो अपनी प्राइवेट की यूज़ करके डिक्रिप्ट करके ओरिजिनल मैसेज क्या कर सकती है, रीड कर सकती है। सो इन असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी हमारा जो डेटा है वो सिक्योरली अलाइस के पास क्या हो जाएगा, सेंड हो जाएगा। सो हियर वी आर यूजिंग वर्ड कम्युनिकेशन चैनल जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग एक्चुअली में, जहाँ पे हमारा जो मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है यूजिंग वर्ड, कौन सा मीडियम से ट्रांसफ़र हो रहा है, HTTPS हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं जो बहुत ही सिक्योरली है,
मैसेज को ट्रांसफ़र करता है बेसिकली। तो असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में याद रखा कि जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह हम लोग कर रहे हुए हैं, जितने भी अमाउंट्स अगर हम लोग पे कर रहे हैं, सेंसिटिव कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह हम लोग सेंड कर रहे हैं, तो वो HTTPS के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, सेंड करेंगे। वहाँ पे असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी बेसिकली यूज़ कर कि सिक्योरली हमारा जो डेटा है वो रिसीवर के पास से रिसीव्ड हो जाए बेसिकली, इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट इज डिजिटल सिग्नेचर। Actually, digital signature is what here? It is a type of electronic signature. First, we will see signature is what exactly. Okay, so basically, signature is what? If I am signing document, so that document is what? It's proving what this document is signed by the authenticate user और valid user। ये जो भी साइन वगैरह किया है ये authenticate user ने ही साइन किया है। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं बैंक में ट्रांजैक्शन वगैरह, मुझे क्या करना है, बैंक में जाना है और मुझे अमाउंट विड्रॉ करना है। सो अमाउंट विड्रॉ करने के लिए पहले क्या होगा, अगर मैं वो स्लिप अगर फिल कर रही हूँ तो उस स्लिप पे मेरी साइन होंगी, ठीक है। वो साइन अगर मैं जमा कराती हूँ, अगर वो स्लिप जमा कराती हूँ तभी मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे अमाउंट मिलेगा। ओके, सो अब वो साइन जो है वो ऑथेंटिकेट यूज़र का ही है या नहीं है, या कोई और विड्रॉ करने आ रहा है, इस तरह से भी हो सकता है बेसिकली। सो वहाँ पे बैंक के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या करेंगे, फर्स्ट वो वेरीफाई करेंगे जो भी साइन किया हुआ है डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करेंगे। अगर वेरीफाइड हो गया, ठीक है, सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया, तो इट मीन्स व्हाट, ये जो भी एक्सेस करने आ रहे हैं, जो भी विड्रॉ कर रहा है, जो भी पर्सन यूज़र, वो क्या है, वैलिड और ऑथेंटिकेट पर्सन, ये हम लोगों को क्या होगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा बेसिकली। सो दिस प्रोसेस इज सेम इन द डिजिटल सिग्नेचर। ये प्रोसेस सेम डिजिटल सिग्नेचर में भी अप्लाई होता है कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के थ्रू क्या आइडेंटिफाई करते हैं, बेसिकली रिसीवर आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो भी सेंडर ने सेंड किया है ये डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट यूज़र या पर्सन से आया हुआ है या नहीं है, ये वेरीफाई करने के लिए हम लोग डिजिटल सिग्नेचर का बेसिकली यूज़ करते हैं। एंड डिजिटल सिग्नेचर में बेसिकली हम लोग असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी यूज़ करेंगे। So this diagram is showing what digital signature, how the process is going in the digital signature, किस तरह से प्रोसेस डिजिटल सिग्नेचर में होता है हमारा बेसिकली। सो यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर में असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी यूज़ करते हैं। इट मीन्स व्हाट, सेंडर के पास भी अपनी पब्लिक की एंड प्राइवेट की होंगी एंड रिसीवर के पास भी अपनी पब्लिक की एंड प्राइवेट की होने वाली है, ठीक है। सिक्योरली हम लोगों को कम्युनिकेशन करना है। सो फॉर एग्जांपल अगर सेंडर कोई इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल सेंडर को क्या करना है, रिसीवर कोई भी होगा, लेट सपोज उसने को समथिंग परचेस किया और उसको बिल अमाउंट चाहिए इन डिजिटल फॉर्म में। तो अब यहाँ पे जो शॉप का ओनर है वो डिजिटली क्या करेगा, डॉक्यूमेंट बिल वगैरह क्या कर रहा, सेंड कर रहा फॉर एग्जांपल। ओके, सो यहाँ पे सेंडर जो है वो बिल साइन करने के लिए, बिल के ऊपर साइन भी लगने वाली है, साइन भी होने वाली है उसकी, तो उसने उस डॉक्यूमेंट पे साइन किया एंड कन्वर्ट किया उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को, इनक्रिप्ट कर दिया, ठीक है। तो इनक्रिप्शन किस तरह से होने वाला है, ये जो मेथड है हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम का। ओके, सो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये कन्वर्ट करके बेसिकली इसको डॉक्यूमेंट को एक प्रॉपरली इनक्रिप्ट करेंगे हम लोग, एंड उसके बाद उस साइपर टेक्स्ट को हम लोग क्या करेंगे, सेंड करेंगे रिसीवर को। उस यहाँ पे आफ्टर दैट रिसीवर को जब वो रिसीव्ड हो जाएगा, ठीक है, अब वो क्या करेगा, सेंडर ने अपनी प्राइवेट की यूज़ करके क्या किया, उसको इनक्रिप्ट किया, तो अब रिसीवर के पास सेंडर की पब्लिक की अवेलेबल होने वाली है, वो भी क्या कर सकता है, डिक्रिप्ट कर सकता। सो यहाँ पे अब रिसीवर को क्या है, ये जानना है बेसिकली कि ये ऑथेंटिकेट यूज़र से आया या नहीं आया, या कोई थर्ड पार्टी ने तो नहीं सेंड किया। थर्ड पार्टी में भी चांसेस है कि थर्ड पार्टी क्या कर सकता, चेंजेस वगैरह कर सकता वहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये पब्लिक की से डिक्रिप्ट होगा और हर एक मशीन पे जो भी कनेक्टेड है इससे हर एक मशीन पे पब्लिक की क्या होगा, अवेलेबल होगा। तो मे बी लिटिल बिट चांसेस है कि मे बी हैकर तो हैक इजीली तो नहीं कर सकता, बिकॉज हम लोग क्या करते हैं इनक्रिप्शन के लिए बहुत ही अल्गोरिदम, सिक्योरली अल्गोरिदम क्या करेंगे हम लोग वहाँ पे अप्लाई करते,
कि कोई भी थर्ड पार्टी उसको डिक्रिप्ट ना कर सके। सो यहाँ पे मे बी अब रिसीवर को क्या करना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि ऑथेंटिकेट यूज़र से आया या नहीं आया, बेसिकली दैट। सो डिक्रिप्ट करने के बाद वो वेरीफाइंग सिग्नेचर, अब वो सिग्नेचर जो है उसके ऊपर वो सिग्नेचर वो क्या करेगा, इस मेथड के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई एल्गोरिदम जो है इस मेथड के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे सिग्नेचर। आफ्टर दैट अगर वो वेरीफाइड हो जाता सिग्नेचर सक्सेसफुली, तो इट मीन्स व्हाट, रिसीवर को क्या मालूम होगा कि ये जो भी मैसेज डॉक्यूमेंट आया ये क्या है, ऑथेंटिकेट यूज़र ने ही मुझे सेंड किया है। ठीक है, वैलिड और ऑथेंटिकेट यूज़र ने ही सेंड किया है, किसी थर्ड पार्टी ने नहीं सेंड किया है। तो बेसिकली यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर में हम लोग ये ऑथेंटिकेट करते हैं कि ये वैलिड और वैलिड यूज़र से, ऑथेंटिकेट यूज़र से ही ये जो डॉक्यूमेंट मुझे रिसीव हुआ ये ऑथेंटिकेट यूज़र से आया या नहीं आया। बेसिकली इस डिजिटल सिग्नेचर में हम वही वेरीफाई करते। यहाँ पे ये डिजिटल सिग्नेचर है एक्चुअली में हमारा। नेक्स्ट हमारे पास पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब नाउ पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इट मीन्स व्हाट, इज अ सेट ऑफ रूल्स, पॉलिसी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ों का क्या है, कलेक्शन है। बेसिकली इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ व्हाट, दीज ऑल थिंग्स, रूल्स, पॉलिसी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड नंबर ऑफ थिंग्स, जो बेसिकली एक्चुअली में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ क्यों करते हैं हम लोग, PKI डिजिटल सर्टिफिकेट को क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे डिजिटल सर्टिफिकेट को क्रिएट करने के लिए हम लोग ये PKI यूज़ करते हैं। एंड PKI में बेसिकली डिजिटल सर्टिफिकेट को क्रिएट करने के लिए, ओके, सो क्रिएशन के लिए जो भी हम लोगों को रोल्स लगने वाले हैं, बेसिकली सेट ऑफ रोल्स लगने वाले, वो सारे सेट यहाँ पे क्या है, पब्लिक के इंफ्रास्ट्रक्चर में अवेलेबल रहते हमारे। तो किस तरह से हम लोग डिजिटल सर्टिफिकेट क्या कर सकते, क्रिएट कर सकते, मैनेज कर सकते। एंड ये क्रिएट, मैनेज एंड स्टोर एंड रिवोक कौन करने वाला है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, यहाँ पे बेसिकली कंपोनेंट्स अवेलेबल है पब्लिक के इंफ्रास्ट्रक्चर में, कंपोनेंट्स ऑफ पब्लिक के इंफ्रास्ट्रक्चर जो मेनली क्या है यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं कि किस तरह से जनरेट करना है पब्लिक की डिजिटल सर्टिफिकेट को किस तरह से क्रिएट करना है, उसके लिए यहाँ पे ये सारे जो रोल्स है, ठीक है, ये सब क्या है, यहाँ पे इनका काम क्या रहता कि पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर में डिजिटल सर्टिफिकेट किस तरह से हम लोग क्रिएट करेंगे, ये काम हमारे DC, CA, RA एंड VA अलग अलग पार्टीज का अलग अलग काम रहता। बेसिकली DC इट मीन्स वो डिजिटल सर्टिफिकेट्स, CA इट मीन्स सर्टिफिकेट अथॉरिटी, RA रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, VA वैलिडेशन अथॉरिटी है। ये सारे अथॉरिटी का काम क्या रहता कि जो भी यूज़र की रिक्वेस्ट है, यूज़र की रिक्वेस्ट जिस तरह से है डिजिटल सर्टिफिकेट अगर उसको चाहिए तो किस तरह से डिजिटल सर्टिफिकेट क्रिएट करेंगे, मैनेज किस तरह से होगा, किस तरह से क्रिएट करके डिजिटल सर्टिफिकेट उस ऑथेंटिकेट यूज़र को क्या करना है, प्रोवाइड करना है। ये सारे चीज़ें इन अथॉरिटीज़ का काम रहता है किस तरह से, और हर एक का अपना अपना रोल है यहाँ पे कि ये किस तरह से डिजिटल सर्टिफिकेट क्रिएट करना है। सो यहाँ पे बेसिकली दिस डायग्राम इज शोइंग व्हाट कि किस तरह से डिजिटल सर्टिफिकेट, एक पर्टिकुलर डिजिटल सर्टिफिकेट जो ऑथेंटिकेट यूज़र को डिजिटल सर्टिफिकेट जो प्रोवाइड करना है, किस तरह से हम लोग क्या कर सकते, प्रोवाइड कर सकते बेसिकली। सो नाउ हियर इज़ व्हाट, दिस इज़ अ यूज़र, ओके, यहाँ पे एक यूज़र है जिसको क्या करना है, बेसिकली ही वांट्स व्हाट, डिजिटल सर्टिफिकेट। सो फर्स्ट ही विल रजिस्टर हिमसेल्फ, ओके, सो ये खुद को क्या करेगा, रजिस्टर करेंगे। एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी हियर इज़ व्हाट, RA इट मीन्स रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। सो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो है वो क्या करने वाली है, कंफर्म करेंगी आइडेंटिटी उसकी, जो भी उसने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट किया है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे रजिस्टर हो गया। फर्स्ट उसको क्या करना है, यूज़र को जिसको भी डिजिटल सर्टिफिकेट चाहिए यूज़र, उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सो रजिस्ट्रेशन करने के लिए उसने जो भी आइडेंटिटी वगैरह दिया है, ठीक है, सो वो RA रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का काम क्या रहता, जो भी रिक्वेस्ट आई हुई है रजिस्ट्रेशन करवा के लेने का काम, ठीक है, तो रजिस्टर वगैरह ID वगैरह देने का काम किसका रहता है, हमारे RA का, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का रहता। तो वो अगर कंफर्म आइडेंटिटी, अगर आइडेंटिटी क्या हो गई, कंफर्म हो गई, इट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे CA
अब वो सीए के पास जाएगा वो सारी चीज़ें। तो सीए क्या करने वाला है, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी का काम क्या रहता, यहाँ पे इसका रोल्स क्या क्या है बेसिकली। इट CA will issue certificate and generating key pair values। यहाँ पे इशू सर्टिफिकेट करके देने का, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने का एंड की जनरेट करने का काम हमारे किसका रहता है, वैलिडेट करने का, वेरीफाई करने का काम किसका रहता है, हमारे सीए का रहता है बेसिकली। सो यहाँ पे वो सीए करने वाला है। अगर इफ सीए ने ओके कर दिया, रजिस्ट्रेशन क्या हो गया हमारा, रजिस्ट्रेशन उसका हो गया, कंप्लीट हो गया रजिस्ट्रेशन। ओके, सो आफ्टर दैट बट ये यूज़र को क्या होगा, आईडी एंड पासवर्ड उसको मिल जाएगा। वो अपने मशीन पे क्या करेगा, उस पर्टिकुलर जो आईडी एंड पासवर्ड मीन्स की जो है उसकी, वो अपने मशीन पे क्या करेगा, इंस्टॉल कर देगा, जनरेट कर लेगा। एंड देन आफ्टर दैट व्हाट, अब इसकी रिक्वेस्ट क्या है, अब से रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट है कि उसको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए कि ऑथेंटिकेट और वैलिड है, वो सर्टिफिकेट से पता चले। अब सर्टिफिकेट के ऊपर क्या रहने वाला है बेसिकली, वो उस यूज़र, पर्टिकुलर यूज़र का नेम एंड किसने उसको इशू किया है, सीए का नाम, वैलिड कब तक है ये सर्टिफिकेट, कब से कब तक का इसका डेट है, एट्सेट्रा। वो क्या होगा, सारी इन्फॉर्मेशन उस सर्टिफिकेट पे क्या होंगी, अवेलेबल होने वाली है, जो डिजिटल सर्टिफिकेट है बेसिकली। तो वो अपने मशीन पे क्या करेगा, इंस्टॉल करेगा बेसिकली वो सर्टिफिकेट। वो क्या है, एक तरह का प्रूफ है कि ये जो भी यूज़र जो सेंड करने वाला है, जो भी जिस तरह का भी मैसेज, ठीक है, वो ऑथेंटिकेट एंड यूज़र पर्सन है, ठीक है। तो ये बताने के लिए अब वो रिक्वेस्ट क्या होगा, सीए के पास जाने वाले एंड सीए इशू करेगा सर्टिफिकेट। बिफोर इशूइंग द सर्टिफिकेट वो क्या होगा, हमारे सर्टिफिकेट वीए वैलिडेशन अथॉरिटी क्या करेगा, उसको वैलिड करेगा, वैलिडेशन करेगा, ठीक है। आफ्टर दैट उसके बाद क्या होगा, फाइनली ये जो यूज़र है वो सर्टिफिकेट क्या कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है, उसको सर्टिफिकेट फाइनली इस तरह से मिल। सो पीकेआई में हम लोग को क्या है, किस तरह से डिजिटल सर्टिफिकेट, किस तरह से एक यूज़र की रिक्वेस्ट डिजिटल सर्टिफिकेट के लिए है, डिजिटल सर्टिफिकेट किस तरह से क्रिएट करके मैनेज करके देना है, ये काम पीकेआई में हम लोग परफॉर्म करते हैं बेसिकली। तो ये सारे रोल्स है हमारे, हर एक का अपना अपना रोल है कि क्या करना है, किस तरह से करना है। तो यहाँ पे रिवोक वगैरह, उसकी डेट अगर ख़त्म हो रही है तो वापस से उसको डिजिटल सर्टिफिकेट के लिए रिक्वेस्ट आई तो वापस से उसको सर्टिफिकेट क्रिएट करके देना है, स्टोर करके रखना है इन्फॉर्मेशन वगैरह, ये सारा काम हमारे सीए का रहता बेसिकली, ठीक है। सो ये हमारा क्या है, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज व्हाट, एप्लीकेशन ऑफ क्रिप्टोग्राफी। नाउअडेज वी आर यूजिंग व्हाट एप्लीकेशन, एन नंबर ऑफ एप्लीकेशन वेयर क्रिप्टोग्राफी इज अचीव, जहाँ पे हमारा क्रिप्टोग्राफी क्या है, मेनली हम लोगों को क्रिप्टोग्राफी देखने मिलता। तो फर्स्ट इज व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक मनी। ये एप्लीकेशन है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मनी, इट मीन्स व्हाट, ट्रांसफरिंग अमाउंट टू अदर पार्टी। ओके, जो भी अमाउंट हम लोग दूसरे पार्टी को अगर सेंड कर रहे तो मेनली हम लोग आजकल क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांजैक्शन यूज़ करते हैं, ई कॉमर्स वगैरह, बैंकिंग, नेट बैंकिंग हो गया, गूगल पे यूज़ करते, पेटीएम वगैरह यूज़ करते, पेपाल हो गया, एटसेट्रा, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आर अवेलेबल टू ट्रांजैक्शन ऑफ मनी। ओके, सो यहाँ पे भी गूगल पे यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, सिक्योरली हमारा जो अमाउंट है जिसको भी हम लोग को सेंड करना है हम लोग सेंड कर सकते। सो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिक्योरली जो भी ट्रांजैक्शन करना है, अमाउंट हम लोग हमारे जिसको भी सेंड करना ऑथेंटिकेट यूज़र को, उसको हम लोग सेंड कर सकते। तो यहाँ पे भी क्रिप्टोग्राफी का यूज़ है। सेकेंड इज़ व्हाट, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन इन ईमेल। अब अगर फॉर एग्जांपल इंक्रिप्शन इन डिक्रिप्शन इन ईमेल में भी अगर हम लोग को ईमेल सेंड करना है, वहाँ पे भी हम लोग क्रिप्टोग्राफी में इसकी सिक्योरली हमारा जो डेटा है वो ट्रांसफ़र हो जाता। डेटा कुछ यहाँ से सेंड हो रहा और कुछ और वहाँ जाके क्या हो रहा, रिसीवर को रिसीव हो रहा, इस तरह से नहीं होगा। तो इनक्रिप्शन इट मीन्स व्हाट, हम जो भी डेटा सेंड करने वाले वो इनक्रिप्ट करके हम लोग इनक्रिप्शन यूज़ करके इनक्रिप्ट करके वो पर्टिकुलर मैसेज को हम लोग क्या करेंगे, इंटरनेट के थ्रू ओवर दी इंटरनेट हम ट्रांसफ़र करेंगे एंड यहाँ पे जो भी रिसीवर है वो रिसीवर को रिसीव हो जाएगा। सो बेसिकली जॉन को क्या करना है, अब सेंसिटिव डेटा ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ पे प्रोसेस क्या होगा, थ्रू दी ईमेल उसको क्या करना है, ईमेल करना है मैरी को सेंसिटिव डेटा। सो जॉन क्या करेगा, मैरी की पब्लिक की सिक्योरली उसको ट्रांसफ़र करना है ईमेल, तो मैरी की पब्लिक की यूज़ करके वो क्या करेगा, इनक्रिप्ट करेगा वो मैसेज एंड देन दैट मैसेज ट्रांसफ़र ओवर द इंटरनेट
तो उसके बाद मैरी को वो मैसेज क्या होगा, मैरी विल गॉट दैट मैसेज एंड आफ्टर दैट मैरी वांट्स टू डिक्रिप्ट दैट मैसेज। तो वो किस तरह से डिक्रिप्ट करेंगी, मैरी अपनी प्राइवेट की यूज़ करके, क्योंकि मैरी की पब्लिक की यूज़ करके इनक्रिप्ट किया है तो मैरी अपनी प्राइवेट की यूज़ करके उसको डिक्रिप्ट कर सकती है। तो आफ्टर दैट मैरी प्राइवेट की यूज़ करके डिक्रिप्ट करेंगे एंड फाइनली दे गॉट द ओरिजिनल मैसेज वाज द मैसेज एग्जैक्टली इज ओके। तो यहाँ पे हम लोग सिक्योरली ईमेल के थ्रू मैसेज वगैरह सेंड कर सकते हैं बेसिकली। इनक्रिप्शन इन व्हाट्सएप, आजकल हम लोग व्हाट्सएप इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी हमारा जो मैसेज है वो सिक्योरली, जो भी मैसेज हमको सेंड करना है सेंडर टू रिसीवर, वो मैसेज हमारा सिक्योरली क्या है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में हमारा मैसेज सेंड होता है। मीन्स वर्ड कि जैसा हम लोग ने हेलो सेंड किया है वैसा ही हेलो ट्रांसफ़र नहीं होता हमारा, वो दैट मैसेज इज़ कन्वर्टेड इनटू व्हाट मीनिंगलेस डेटा में कन्वर्ट होता, कि वो एग्जैक्टली जो मैसेज सेंडर ने सेंड किया है अगर हैकर ने देख भी लिया तो वो डिक्रिप्ट नहीं कर सकता कि मैसेज एक्चुअली में क्या है, वो खोल नहीं ओपन नहीं कर सकता एक्चुअली में। जब वो ओपन नहीं करेगा उस पर्टिकुलर एनवलप को तो वो मैसेज एग्जैक्टली में मैसेज क्या है यहाँ पे उसको किस तरह से पता चलने वाला है, ठीक है। तो जिसको भी मैसेज सेंड किया हुआ है वो रिसीवर को क्या होगा, रिसीव हो जाएगा इन द इनक्रिप्टेड फॉर्म एंड आफ्टर दैट रिसीवर विल डिक्रिप्ट दैट मैसेज एंड सी व्हाट द मैसेज इज। इस तरह से इन व्हाट्सएप इंस्टाग्राम में भी हम लोग सिक्योरली क्या करते हैं, मैसेज को ट्रांसफ़र करते, ठीक है। तो जो भी मैसेज वगैरह है वो सिक्योरली हम लोगों को मिल जाता। फिफ्थ ऑथेंटिकेशन और डिजिटल सिग्नेचर। अब डिजिटल सिग्नेचर में भी यहाँ पे भी हम लोग क्रिप्टोग्राफी मीन्स कि सिक्योरली अगर हम लोग को डेटा ट्रांसफ़र करना है तो अगर डिजिटल सिग्नेचर यूज़ कर रहे इट मीन्स व्हाट की ऑथेंटिकेशन हम लोग को ये वेरीफाई करना है, ठीक है, कि वो वैलिड यूज़र से आया है या नहीं आया। ये मैसेज कोई भी मैसेज क्या कर सकता है यहाँ पे चेंज वगैरह कर सकता है, तो रिसीवर को अगर वो आइडेंटिफाई करना है कि वो वैलिड यूज़र से है या नहीं है तो डिजिटल सिग्नेचर को हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे यूज़ करके ऑथेंटिकेट वैलिड और यूज़र की तरफ से ये मैसेज है या नहीं है वो चेक कर सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या यूज़ करें, क्रिप्टोग्राफी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट, क्रिप्टोग्राफी टूल्स। नाउ क्रिप्टोग्राफी टूल्स इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल क्रिप्टोग्राफिक टूल्स हैं। वाई वी आर यूजिंग क्रिप्टोग्राफिक टूल्स, बिकॉज फॉर बिल्डिंग अ वन कंप्यूटर सिस्टम, ओके, सिक्योरली अगर कंप्यूटर सिस्टम हम लोगों को बिल्ड करना है सो दीज टूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रिप्टोग्राफी बेसिकली, ओके। तो फर्स्ट इज व्हाट, सिक्योरिटी टोकन्स। दिस टोकन्स इज व्हाट एक्चुअली, दिस इज अ फिजिकल डिवाइस, एक्चुअली ये एक फिजिकल डिवाइस है, ओके। सो यहाँ पे इस फिजिकल डिवाइस में एक सिस्टम हम लोगों को क्या करना है, क्रिएट करना है, बेसिकली एक सिस्टम हम लोगों को बिल्ड करना है। सो उस पर्टिकुलर सिस्टम को बिल्ड करने के लिए, क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम को अगर बिल्ड करना है हम लोगों को तो वो टूल्स की हम लोगों को क्या है बेसिकली नीड है। सो सिक्योरिटी फर्स्ट टोकन इज़ वर्ड, जो टूल है हमारा, तो फर्स्ट क्या है, सिक्योरिटी टोकन से। ये एक सिक्योरिटी टोकन्स क्या है, फिजिकल डिवाइस है बेसिकली हमारा, जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन क्या करता है, ये फिजिकल डिवाइस होल्ड करता व्हाट इंफॉर्मेशन, ओके, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इट विल होल्ड। सो जो ऑथेंटिकेट पर्सनस है, ऑथेंटिकेट पर्सन इट मीन्स व्हाट, सेंडर और रिसीवर जो सेंड कर रहे एक दूसरे को मैसेज, ओके। सो वो वैलिड यूज़र है या नहीं है, ये सारी उनकी इन्फॉर्मेशन क्या है, ऑथेंटिकेट पर्सन की आइडेंटिटी, ये सारी इन्फॉर्मेशन दिस डिवाइस विल होल्ड, ओके। तो दिस इज़ व्हाट सिक्योरिटी टोकन्स। तो ये एक क्या है हमारा इन्फॉर्मेशन जो डिजिटल सर्टिफिकेट हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं ऑथेंटिकेट यूज़र बताने के लिए, डिजिटल सर्टिफिकेट यूज़ कर रहे कि पब्लिक की और प्राइवेट की, अगर हम लोगों को आईडी एंड पासवर्ड जनरेट कर रहे तो बेसिकली वो एक सिस्टम में हम लोग क्या करने वाले हैं, उसको फीड करने वाले हैं एंड दैट शोइंग व्हाट, अगर हम ट्रांजैक्शन वगैरह कर रहे हैं तो इट मीन्स व्हाट कि ऑथेंटिकेट यूज़र से वो मैसेज सेंड हो रहा है या नहीं हो रहा, रिसीवर के पास जो भी जा रहा है वो सही यूज़र के पास जा रहा है या नहीं जा रहा है, इस तरह से रिसीवर के पास। तो यहाँ पे ये फिजिकल डिवाइस में वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, स्टोर है। सो उससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑथेंटिकेट यूज़र है या नहीं है बेसिकली। नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट, नेक्स्ट टूल इज़ व्हाट, की बेस्ड ऑथेंटिकेशन। एंड नाउ की बेस्ड ऑथेंटिकेशन इट मीन्स व्हाट, बाय यूजिंग की वी कैन ऑथेंटिकेट दैट मैसेजेस केम फ्रॉम व्हाट वैलिड यूज़र और नॉट, ओके। सो हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो मैसेज आया है ये वैलिड यूज़र से है या नहीं है, बाय व्हाट,
by using what? Key. So key based authentication, it means what? By using key we can identify that authenticate person valid है या नहीं है, वो जो मैसेज है वो वैलिड यूज़र से आया है या नहीं आया है। तो इट मीन्स व्हाट कि आइडेंटिफाई करना है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? असिमेट्रिक एल्गोरिदम। असिमेट्रिक एल्गोरिदम के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे क्लाइंट्स की आइडेंटिटी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेसिकली, कि यहाँ पे जो भी है अगर वो प्राइवेट की अगर यूज़ कर रहा है फॉर एग्जांपल, ओके, सो अगर पब्लिक की यूज़ करके उसने इनक्रिप्ट किया, तो यहाँ पे अगर हम लोग उसकी ही अगर प्राइवेट की यूज़ कर रहे हैं बेसिकली उसका की यूज़ करके अगर हम लोग क्या कर रहे हैं? उस मैसेज को डिक्रिप्ट कर रहे हैं। इट मीन्स व्हाट कि वो वैलिड यूज़र से ही आया हुआ है। इट मीन्स इसका मतलब ये है, अगर मैं रिसीवर की पब्लिक की यूज़ करके उस इनक्रिप्ट कर रही हूँ, तो जब मैसेज ट्रांसफ़र होगा रिसीवर को मैसेज मिल जाएगा, तब रिसीवर क्या करेगा? अपनी प्राइवेट की यूज़ करके वो डिक्रिप्ट करेगा। इट मीन्स व्हाट कि की के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं? आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि दिस मैसेजेस केम फ्रॉम व्हाट ऑथेंटिकेट यूज़र से ही आया है ये मैसेज। तो की के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? वेरीफाई कर सकते हैं क्लाइंट की आइडेंटिटी बेसिकली, जो सेंडर जो सेंड कर रहा है मैसेज। नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट? डॉकर। सो नाउ डॉकर इट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे डॉकर इज नथिंग व्हाट सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो हम लोग बिल्ड करते हैं बेसिकली। वी आर यूजिंग दिस फॉर बिल्डिंग व्हाट? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को बेसिकली बिल्ड करने के लिए हम लोग डॉकर का यूज़ करते हैं, एंड डॉकर इज़ वेरी सिक्योर। तो डॉकर अगर हम लोग यूज़ करें तो ये क्या है? सिक्योरिटी पर्पज़ के बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है एक्चुअली में। सो डॉकर का यूज़ हम लोग क्यों करने वाले हैं? सो बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल वगैरह भी करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो अगर मैं कुछ समथिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रही हूँ और उसको रन करना है मुझे, तो एट द टाइम ऑफ रन, सो वो क्या होगा? रन के टाइम पे कुछ कॉम्प्लिकेशन वगैरह होगा, एरर वगैरह आएंगे, एरर वगैरह का इशू होगा। तो वो क्या है? कंपैटिबिलिटी नहीं रहती इतनी हमारी इसमें, तो वो क्या है? एरर वगैरह सॉल्व करूँगी, एंड देन मैं जो भी एप्लीकेशंस वगैरह बना रही हो, वो एप्लीकेशन मैंने बना ली फॉर एग्जांपल, तो वो मेरे मशीन पे मैंने बनाया है, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट? वो एप्लीकेशन मेरे मशीन पे रन हो रही है, एंड दैट उसके बाद मैं क्या करूँगी? वही एप्लीकेशन अगर मैं दूसरे मशीन पे अगर मैं क्या कर रही हूँ? डिप्लॉय कर रही हूँ, तो वो क्या होना चाहिए? दूसरे मशीन पर रन होना चाहिए बेसिकली। तो अगर कुछ कंपैटिबिलिटी का इश्यू होगा कि अगर मैंने जो भी एप्लीकेशन बनाने के लिए जो लैंग्वेज वगैरह यूज़ किया है, जो भी विंडोज़ वगैरह ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली में यूज़ किया है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर वहाँ पे नहीं होगा, तो बेसिकली कॉम्प्लिकेटेड है कि वो एप्लीकेशन हमारा दूसरे मशीन पे रन ना हो सके। तो इस तरह से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? उसके जो भी रिलेटेड उस एप्लीकेशन से रिलेटेड जितने सॉफ्टवेयर वगैरह है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, एंड देन मुझे वो एप्लीकेशन रन करवाना पड़ेगा। सो ये क्या है? कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर मैं जितने मशीन पर अगर उस एप्लीकेशन को रन कराऊँगी, तो उसकी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से मुझे चेंजेस वगैरह करना पड़ेगा। सो डॉकर के यूज़ से हम लोग क्या कर सकते हैं बेसिकली इजी वे में? सो डॉकर इज़ व्हाट? डॉकर में एक कंटेनर रहता, तो उस कंटेनर का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं? और कंटेनर बेसिकली दैट कंटेनर आर वेरी सिक्योर। सो सिक्योरिटी के पर्पज़ के हिसाब से डॉकर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो डॉकर में हम लोग क्या करेंगे? इस काम को इजी करने के लिए हम लोग डॉकर का यूज़ करते हैं। तो कंटेनर में बेसिकली हम लोग एप्लीकेशन के लिए जो भी एप्लीकेशन है हमारा, ठीक है, एप्लीकेशन के लिए जो भी सर्विसेज, लाइब्रेरीज, जो भी हम लोग को जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड है, वो हम लोग क्या करेंगे? कंटेनर में, डॉकर के कंटेनर में हम लोग वो पैक करके क्या करेंगे? डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं? रन करा सकते। सो ये सिक्योरली हमारा जो भी डॉकर है, जो कंटेनर है, वो हम लोग क्या करेंगे? एप्लीकेशन वगैरह डिफरेंट मशीन पे हम लोग इजीली और सिक्योरली हम लोग क्या कर सकते? रन करा सकते वो एप्लीकेशन। ये इजी हो जाता है हमारे डॉकर के यूज़ से। नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट? जावा क्रिप्टोग्राफी आर्किटेक्चर। तो जावा क्रिप्टोग्राफी आर्किटेक्चर इट मीन्स व्हाट कि अगर हम लोगों को क्या करना है? कुछ एप्लीकेशंस वगैरह क्या करना है? बिल्ड वगैरह करना है। क्रिप्टोग्राफी की एप्लीकेशंस वगैरह हम लोगों को क्या करना है? बिल्ड करना है। सो यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी फंक्शन जो भी
क्रिप्टोग्राफी में जो फंक्शंस वगैरह है बेसिकली वो सिक्योर होना चाहिए हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को जावा क्रिप्टोग्राफी आर्किटेक्चर में क्या है, यहाँ पे JCA भी बोल सकते हैं हम लोग। जावा क्रिप्टोग्राफी आर्किटेक्चर इज इंटीग्रेटेड व्हाट विद द कोर जावा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, API इट मीन्स। तो वो इंटीग्रेटेड रहता है हमारे API से। इट मीन्स व्हाट, API हैंडल व्हाट सिक्योरिटी फंक्शन। जो भी क्रिप्टोग्राफी में सिक्योरिटी के हिसाब से जो भी हम लोगों को फंक्शंस वगैरह लगने वाले हैं वो सारे हमारा APIs हैंडल करता है। इट मीन्स व्हाट, दैट इंक्लूड व्हाट, इनक्रिप्शन, मैनेजिंग कीज वगैरह जो हम लोगों को मैनेज करना है। ओके, सो मैनेजिंग की, जनरेटिंग रैंडम नंबर सिक्योरली एंड वैलिडेटिंग सर्टिफिकेट, जो वैलिडेट करना है हम लोगों को जो सर्टिफिकेट, एंड जनरेटिंग रैंडम नंबर जो की हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली, ठीक है। सो जो भी रैंडमली जनरेटेड नंबर हम लोग को यूज़ करना है, दीज ऑल हैंडल बाय दी व्हाट, APIs हैंडल करने वाला है ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली दीज APIs प्रोवाइड अ वे फॉर डेवलपर्स टू बिल्ड सिक्योरिटी इनटू एप्लीकेशन कोड। तो एप्लीकेशन कोड एक बनाने के लिए ये APIs हम लोगों को क्या प्रोवाइड करता है, डेवलपर को एक्चुअली। सो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि सिक्योरली हम एक एप्लीकेशन जो क्रिप्टोग्राफी के लिए हम लोग एप्लीकेशन जो कोड कर रहे हैं वो सिक्योरली हम लोग क्या कर सके, बिल्ड कर सके। APIs प्रोवाइड करता है बेसिकली हमारा। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स। नाउ क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक इज व्हाट हियर। अब बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, डिफरेंट मैसेजेस सेंड करना है ओवर द इंटरनेट। सो सेंडर टू रिसीवर मैसेज सेंड होगा हमारा ओवर द इंटरनेट, एंड इफ आई एम नॉट यूजिंग सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल, सो व्हाट विल हैपन, हैकर विल हैक माई मैसेज एंड चेंज एंड अल्टर माई मैसेज। ओके, या तो फिर मैं अमाउंट ट्रांजेक्शन कर रही हूँ तो वो अमाउंट भी क्या कर सकता है, हैक कर सकता है मेरे अमाउंट। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हैकर विल नॉट हैक अ मैसेज। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी विल इनक्रिप्ट अ मैसेज एंड देन आफ्टर दैट आई विल सेंड दिस मैसेज टू द रेसिपिएंट। सो मैं उस मैसेज को क्या करूँगी, सेंड करूँगी। सो सिंपल कोड यहाँ पे जो फर्स्ट टेक्निक हम लोग एन नंबर ऑफ हम लोग क्या करते हैं क्रिप्टोग्राफी बिल्ड करने के लिए टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। ऐसे टेक्निक्स क्यों हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, बेसिकली कि हमारा जो डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल डेटा है, ठीक है, थर्ड पार्टी एक्सेस ना कर सके, अनऑथराइज पार्टी एक्सेस ना कर सके। सो दैट्स वाई हम लोग क्या कर रहे हैं, टेक्निक्स, डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, उस मैसेज को सिक्योर करेंगे एंड सिक्योरली हम उस मैसेज को ट्रांसफ़र करने वाले हैं बेसिकली। सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, सिंपल कोड। सिंपल कोड इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे जो भी मैसेज हम लोग राइट कर रहे हैं, ओके, सो आफ्टर दैट मैं इनक्रिप्ट करना चाहूँगी उस मैसेज को, इनक्रिप्शन अप्लाई करूँगी की यूज़ करके। तो इट मीन्स व्हाट, इस डायग्राम में जो हम लोगों को शो कर रहा है बेसिकली, तो ये क्या है, मीनिंगलेस डेटा है बेसिकली हमारा। सो यहाँ पे हम लोगों को अगर कुछ मैसेज सेंड करना है, सो ये मीनिंगलेस डेटा हम लोग क्या करेंगे, हमारा मैसेज में अपेंड करेंगे। इट मीन्स व्हाट, इन प्लेस ऑफ दैट मैसेज हम लोग क्या करेंगे, अपेंड कर देंगे ये मैसेज, और वो डेटा जो है हमारा मीनिंगलेस हो जाएगा। सो नोबडी कैन अंडरस्टैंड, रीड भी नहीं कर सकता और वो डेटा में भी रीड कर सकता है बट अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कि एग्जैक्टली मैसेज इज़ व्हाट। ओके, सो हैकर हैक्ड भी नहीं कर सकता बिकॉज उसको समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली में मैसेज क्या है। सो इस तरह का हम लोग क्या करते हैं, डिफ़िकल्टी क्रिएट करते हैं, हमारे जो भी मैसेज वगैरह सेंड करना है उसमें डिफ़िकल्टी प्रोवाइड करेंगे हम लोग, अपेंड करेंगे कुछ और मैसेज वगैरह। नंबर ऑफ़ एल्गोरिदम हमारे पास अवेलेबल है, उस एल्गोरिदम, उस टेक्निक का यूज़ करके, एल्गोरिदम का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, उस मैसेज को कन्वर्ट करेंगे हम लोग, एंड देन आफ्टर दैट हम लोग वो मैसेज को सेंड करेंगे। सो ये क्या है, सिंपल कोड में बेसिकली इस टेक्निक से हम लोग हमारा जो भी मैसेज है उसको डिफ़िकल्ट वे में हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, इनक्रिप्ट करके डेटा सेंड करते हैं। नेक्स्ट हमारा सिमेट्रिक इनक्रिप्शन। सो सिमेट्रिक इनक्रिप्शन इट मीन्स व्हाट, ऑलरेडी वी हैव स्टडीड दिस। ओके, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है ये कि इन सिमेट्रिक इनक्रिप्शन इज़ व्हाट। तो इनक्रिप्शन, सिमेट्रिक इनक्रिप्शन ये टेक्निक यूज़ क्यों कर रहे हैं हम लोग, बेसिकली कि बाय यूजिंग दिस टेक्निक जो हमारा डेटा है वो डेटा सिक्योरली हमारा रेसिपेंट को क्या होगा, सिक्योरली रेसिपेंट को सेंड हो जाएगा। जिस तरह से डायग्राम में हम लोगों को यहाँ पे बताया हुआ है कि सिमेट्रिक में हम लोग ओनली वन की यूज़ करते हैं बेसिकली, एंड दैट की पब्लिक की यूज़ करते हैं, एंड पब्लिक की इज़ व्हाट, पब्लिक की को हम
सीक्रेट की भी बोल सकते। सो इफ़ मैं क्या कर रही हूँ, अगर मैं सीक्रेट की यूज़ करके डेटा इनक्रिप्ट कर रही हूँ, प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट कर रही हूँ एंड कन्वर्टेड इनटू साइफर टेक्स्ट, नाउ दैट साइफर टेक्स्ट विल ट्रांसफर ओवर द इंटरनेट एंड रिसीव बाय द रिसीवर। सो यहाँ पे जो भी सेंड करूँगी मैं डेटा, तो उसके साथ मैं क्या करूँगी, उस मैसेज के साथ इनक्रिप्ट करूँगी ये सीक्रेट कोड भी, सीक्रेट की भी एक्चुअली में। तो ये भी मुझे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा रेसिपेंट को। सो यहाँ पे वो क्या करेगा, फाइनली डिक्रिप्ट करेगा वो मैसेज एंड आफ्टर दैट रेसिपेंट जो है, ऑथराइज जो पर्सन है, वो डिक्रिप्ट करके वो प्लेन टेक्स्ट में वो मैसेज कन्वर्ट कर दे। सो इस तरह से हमारा क्या है, सिमेट्रिक इनक्रिप्शन, ये टेक्निक हम लोग इसलिए अप्लाई करते बिकॉज मेरा जो डेटा है वो सिक्योरली रेसिपेंट तक पहुंच जाए। नेक्स्ट इज असिमेट्रिक इनक्रिप्शन। असिमेट्रिक इनक्रिप्शन भी हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि असिमेट्रिक इनक्रिप्शन में जिस तरह से डायग्राम में दिखाया हुआ है हमारा, कि असिमेट्रिक इनक्रिप्शन में बेसिकली हम लोग 2 डिफरेंट पेयर ऑफ कीज़ क्या करते हैं, यूज़ करते हैं हम लोग। तो 2 डिफरेंट पेयर ऑफ की यूज़ करने का मतलब क्या है, यहाँ पे ओरिजिनल जो टेक्स्ट है उसमें हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक की, किसकी पब्लिक की, रिसीवर की पब्लिक की यूज़ करके इनक्रिप्ट करेंगे। मोर सिक्योरिटी अगर हमको प्रोवाइड करना है कि हैकर विल नॉट हैक आवर डेटा, तो हैकर हमारा डेटा नहीं हैक करना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, रिसीवर की पब्लिक की यूज़ करके इनक्रिप्शन करेंगे एंड दैट इनक्रिप्ट करके साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करके उस पर्टिकुलर मैसेज को हम लोग क्या, यहाँ पे हम लोग को की ट्रांसफ़र नहीं करना पड़ता, बट इन सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी हम लोग को वहाँ पे की भी पास करना पड़ता डिक्रिप्ट करने के लिए, बट यहाँ पे हम लोग असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में की हम लोग ट्रांसफ़र नहीं करना पड़ता। ओके, सो यहाँ पे मैं रिसीवर की पब्लिक की यूज़ करके इनक्रिप्ट करूँगी डेटा एंड देन ट्रांसफ़र करूँगी मैं वो टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट, एंड अगर रिसीवर को वो ओरिजिनल मैसेज देखना भी है तो वो अपनी प्राइवेट की यूज़ करके, जैसे क्योंकि इनक्रिप्शन उसी की पब्लिक की से हो गया, तो उसी की प्राइवेट की यूज़ करके मैं क्या कर सकती हूँ, डेटा को डिक्रिप्ट कर सकती हूँ। सो डिक्रिप्ट करने के बाद वो मुझे क्या है, मैसेज मिल जाएगा। तो रिसीवर की प्राइवेट की तो हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होंगी, तो कोई भी वो डिक्रिप्ट नहीं कर सकता वो मैसेज मेरा। सो नाउ सिक्योरली आ मैसेज विल रिसीव सिक्योरली मेरा मैसेज रिसीवर को रिसीव हो जाएगा बेसिकली। सो यहाँ पे सिक्योरिटी के हिसाब से सिमेट्रिक इनक्रिप्शन जो है वो सिक्योरली हमारा मैसेज जो है वो रिसीवर्स तक रिसीव हो जाएगा हमारा। सो ये हमारा लास्ट पॉइंट था। सो नाउ थैंक यू एवरीवन, होप तुम लोगों को, आप लोगों को ये सब समझाऊंगा। ओके।